صرف 70 سال پہلے دبئی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ اپنے گزارے کے لیے سمندر میں موتی ڈھونڈتے تھے یا پھر ریگستان میں اونٹ چراتے تھے. لیکن آج یہاں سونے کی نمبر پلیٹس بکتی ہیں, فراری ٹیکسی بن چکی ہے اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت یہاں سے آسمان سے باتیں کرتی ہے. اب سوال یہ ہے, صرف 70 سال میں یہ بدلاوا کیسے آیا؟ کیا واقعی صرف تیل نے سب کچھ بدل دیا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور چیز تھی؟ ایک سوچ, ایک لیڈر اور ایک ایسی پلاننگ جو پوری دنیا کو حیران کر دے. آج ہم جانیں گے دبئی کی اصلی کہانی جو جادو جیسی لگتی ہے لیکن بالکل حقیقت پر بیسڈ ہے. تو چلیے واپس چلتے ہیں 1800 میں. اس وقت دبئی فارس کی خلیج کے کنارے بسا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. یہاں کے لوگ مچھلیاں پکڑتے اور موتی نکال کر اپنی زندگی گزارتے تھے. دبئی اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک دن دنیا کا سب سے چمکتا شہر بن جائے گا. لیکن دبئی کی ایک چیز بہت خاص تھی, یہ ایشیا, افریقہ اور یورپ کے بیچ ایک اہم راستہ تھا. اسی وجہ سے دبئی کو تجارت یعنی بزنس کے لیے پہلا موقع ملا. یہ سفر بالکل آسان نہیں تھا. 19ویں صدی میں برٹش امپائر کے لیے یہ علاقہ صرف راستہ تھا جو لندن کو ممبئی سے جوڑتا تھا. برٹش لوگوں نے یہاں کے شیخوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے ٹروشل ایگریمنٹ کہا جاتا ہے تاکہ ان کے جہاز ڈاکوؤں سے محفوظ رہے. اس وقت دبئی ابوظہبی کے اندر تھا, لیکن 1833 میں شیخ مختوم بن بطی نے دبئی کو الگ کر کے ایک الگ اور آزاد ریاست بنا دی. یہی تھا دبئی کا پہلا قدم اپنی خود کی تقدیر لکھنے کی طرف. اب 19ویں صدی میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں کے مقامی شیخوں سے معاہدہ کیا. اس میں خاص طور پر المختوم خاندان شامل تھا جو ابوظہبی اور دبئی کے حکمران خاندان تھے. مقصد یہ تھا کہ اس علاقے میں امن اور سکون بنا رہے. آج بھی المختوم خاندان دبئی پر حکومت کر رہا ہے. ان معاہدوں کے باوجود برٹش امپائر نے اس علاقے کو آگے بڑھنے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیا, جبکہ ممبئی جو برٹش امپائر کا جنوبی کیپٹل تھا وہاں سڑکیں, ریلوے اور یونیورسٹیز بنائی جا رہی تھی. دبئی کو ایک پراپر شہر بنانے پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی. برٹش امپائر کے لیے دبئی صرف ایک چھوٹا سا پارٹنر تھا جو رائل شپس کے لیے بس ایک گزرنے کا راستہ تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن اصل کہانی شروع ہوتی ہے 1900 میں جب دبئی کے حکمران نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ تجارت کرنے والوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. یہ فیصلہ بہت پاورفل ثابت ہوا. پرشیا اور ہندوستان کے تاجر بڑی تعداد میں دبئی آنے لگے. دبئی کریک جو نمکین پانی کا ایک چھوٹا سا راستہ تھا, چھوٹے جہازوں کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا. کچھ ہی سالوں میں دبئی فارس کی خلیج کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا. اس وقت موتی کا کاروبار دبئی کی اکانومی کا 95% حصہ تھا. لیکن پھر بھی دبئی ابھی تک ایک شہر نہیں, صرف ایک بڑا گاؤں ہی تھا. اب آتی ہے کہانی کی سب سے اہم شخصیت, شیخ راشد بن سعید المختوم. 1958 میں جب وہ دبئی کے حکمران بنے, انہوں نے ایک خواب دیکھا, دبئی کو ایک بین الاقوامی شہر بنانا. 1959 میں وہ یورپ کے دورے پر گئے اور لندن کے انفراسٹرکچر, ٹرانسپورٹ سسٹم اور اربن ڈیزائن نے انہیں حیران کر دیا. وہ سوچنے لگے اگر لندن ایسا ہو سکتا ہے تو دبئی کیوں نہیں. واپس آتے ہی انہوں نے اپنا پلان شروع کیا. سب سے پہلے انہوں نے دبئی کریک کو گہرا اور چوڑا کروایا تاکہ بڑے تجارتی جہاز آ سکے. اس کے لیے انہوں نے بہت بڑا لون لیا جو ایک رسکی فیصلہ تھا. لوگوں نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے, اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہو. لیکن شیخ راشد کا ویژن الگ تھا. انہوں نے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا اور یہ سوچ کر کہ دبئی کو دنیا کے ہر کونے سے جوڑنا ہے, انہوں نے برٹش ایکسپرٹس کو بلایا. پھر 1966 میں دبئی میں تیل ملا, لیکن یہ تیل مڈل ایسٹ اسٹینڈرڈ کے حساب سے بہت کم تھا. پاس کے ابوظہبی کے پاس 10 گنا زیادہ تیل تھا. لیکن شیخ راشد کے لیے ایک نعمت تھی. انہوں نے تیل کے پیسے کو ان لمیٹڈ دولت سمجھنے کے بجائے اسے شہری ترقی میں لگایا. انہوں نے کہا میرا شہر تیل پر نہیں بلکہ ویژن اور انوویشن پر چلے گا. ان کا ایک مشہور قول ہے, میرے دادا اونٹ پر سوار تھے, میں مرسیڈیز چلاتا ہوں, میرا بیٹا لینڈ روور چلائے گا, لیکن اس کے بعد کا بیٹا پھر اونٹ پر سوار ہوگا. اس لیے انہوں نے دبئی کو ایسا بنایا
जो तेल पर मुनहसर ना हो। 1972 में पोर्ट राशिद बना और 1979 में पोर्ट जबल अली, जो आज भी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। और फिर एक और गेम चेंजर फैसला, शेख राशिद ने जबल अली को टैक्स फ्री जोन करार दिया। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, कोई टैक्स नहीं। ये फैसला ऐसा था कि दुनिया भर के ताजिर और कंपनीज दुबई की तरफ दौड़ पड़े। 1971 में 7 शहरों ने मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाया। अबू धाबी का बादशाह प्रेसिडेंट और दुबई का बादशाह प्राइम मिनिस्टर, ये फैसला हुआ। दुबई की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, जहाँ वाकई खेल बदल जाता है। 1971 में जब मुत्तहिदा अरब अमारात का वजूद आया तो दुबई इसका एक अहम हिस्सा बना। उस वक्त दुबई के पास तेल की मिकदार अबू धाबी जितनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने इस छोटी सी दौलत को हाथों हाथ ले लिया। उन्होंने तेल से हासिल होने वाली आमदनी को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसे एक बुनियाद बनाया। उन्होंने फैसला किया कि दुबई की मईशत को मुख्तलिफ फील्ड्स में डाइवर्सिफाई किया जाए। यानी उन्होंने दुबई को सिर्फ तेल पर डिपेंड करने वाले शहर से हटाकर कई और शोबों में तरक्की की तरफ मोड़ दिया। एक बड़ी सोच थी जो आगे चलकर दुबई को एक आलमगीर कुव्वत बनाएगी। यहाँ शेख राशिद का विजन सामने आता है, जो असल में दुबई की तरक्की का राज है। उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि तेल एक महदूद वसीला है जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि दुबई को मुस्तकबिल के लिए तैयार करना होगा, वरना ये शहर दोबारा मुश्किलात में फंस सकता है। उन्होंने 3 अहम शोबों पर फोकस किया। नंबर 1 सियाहत, टूरिज्म, जैसे कि होटल्स और सियाही मकामात। नंबर 2 तिजारत, ट्रेड, जिसमें पोर्ट्स और एयरपोर्ट शामिल है। नंबर 3 रियल एस्टेट, जैसे कि इमारतें और लग्जरी प्रोजेक्ट्स। ये स्ट्रैटेजी उनकी बड़ी कामयाबी की वजह बनी, क्योंकि आज का दुबई इन्हीं फील्ड्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये हमें यह सबक देता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और दूर अंदेश सोच ही असल कामयाबी की कुंजी हो सकती है। लेकिन दुबई का असली जादू तब शुरू हुआ जब शेख राशिद का बेटा शेख मोहम्मद बिन राशिद ने 1981 में हुकूमत संभाली। उनका विजन अपने वालिद से भी बड़ा था। वो चाहते थे कि दुबई दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे शानदार शहर बने। उन्होंने डैनियल बर्नहम से इल्हाम लिया, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट जिसने मॉडर्न चिकागो डिजाइन किया। बर्नहम का कॉल था, छोटा ख्वाब मत देखो, क्योंकि छोटा ख्वाब किसी को इंस्पायर नहीं करता। शेख मोहम्मद ने इसे दिल से लगा लिया। लेकिन दुबई सिर्फ इमारतों का शहर नहीं बना। शेख मोहम्मद ने एविएशन पर फोकस किया। 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन शुरू हुई और आज ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। उन्होंने पाकिस्तान के बिजी कराची एयरपोर्ट का बिजनेस दुबई की तरफ डाइवर्ट किया और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट बन गया। अब 2000 में एमिरेट्स टावर बना, जो उस वक्त यूरोप की किसी भी इमारत से ऊंचा था। फिर 2010 में आया बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। फिर 2002 में दुबई ने एक और बहुत बड़ा फैसला किया। फॉरेनर्स को दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत दी गई। बस इस फैसले के बाद पूरी दुनिया के अमीर लोग दुबई की तरफ आ गए। दुबई अचानक एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट बन गया, जैसे रेगिस्तान के बीच कोई कंस्ट्रक्शन का सोना मिल गया हो। और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जैसे प्रोजेक्ट ने दुबई को न्यूयॉर्क और लंदन के बराबर ला खड़ा किया। आज दुबई की 95% आबादी फॉरेनर्स पर मुश्तमिल है, जिसने इसे एक असल इंटरनेशनल शहर बना दिया है। लेकिन हर कहानी में एक मुश्किल मोड़ जरूर आता है, और दुबई की कहानी का सबसे मुश्किल वक्त 2008 में आया। उस वक्त पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार थी। अमेरिका में बैंक्स बंद हो रहे थे, यूरोप की मार्केट गिर रही थी, और उसका असर दुबई तक भी पहुंच गया। दुबई जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट पर खड़ा था, सबसे पहला जोर का झटका भी यहीं लगा। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में तेज रुकावट आ गई। दुबई लैंड, अरेबियन कैनाल, बुर्ज अल अरब, पाम जबल अली और पेंटामोनियम जैसे बहुत से प्रोजेक्ट या तो रोक दिए गए या फिर हमेशा के लिए बंद कर दिए गए।
डेवलपर्स के पास पैसा खत्म हो गया और इन्वेस्टर ने अपना हाथ वापस खींच लिया। जो शहर कल तक लोगों को सपने दिखा रहा था, आज वहां अधूरी इमारतें और हर तरफ खामोशी थी। इससे भी बड़ा झटका दुबई को तब लगा जब दुबई वर्ल्ड, जो कि एक स्टेट ओन्ड मेगा कंपनी थी, ने अनाउंस किया कि वो अपना कर्जा जो लगभग 59 बिलियन डॉलर का था, वक्त पर नहीं चुका सकती। यह खबर दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट में अर्थक्वेक की तरह फैल गई। इन्वेस्टर घबरा गए। दुबई का नाम अनसर्टेनिटी का सिंबल बन गया। लोगों की जॉब्स चली गई, कंपनीज ने तनख्वाहों में कट्स लगाए, होटल्स में लोग कम हो गए, मॉल्स में खरीदारी थम गई, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया और इकॉनमी स्लो होती चली गई और ऑयल के दाम भी गिरे। डाइवर्सिफिकेशंस के जो प्लान थे उनमें भी डिले आया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2009 से 2013 के दरमियान दुबई ने धीरे धीरे रिकवरी शुरू की। नए रूल्स लाए गए, नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया गया और एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर काम शुरू हुआ। दुबई ने यह सबक सीखा कि सिर्फ बुलंदी का सोचना काफी नहीं, गिरना भी आता है और उठना भी सीखना पड़ता है। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे एक अंधेरा भी होता है। दुबई की तरक्की के पीछे बहुत से मजदूरों का पसीना है। मजदूर जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस से आए। ये लोग कफाला सिस्टम के तहत काम करते हैं, जहां उनके पासपोर्ट और वीजा एम्प्लॉयज के हाथ में होते हैं। इस सिस्टम को वेस्टर्न मीडिया मॉडर्न स्लेवरी कहता है। वर्कर्स को कम सैलरी, लंबे घंटे और खराब हालात का सामना करना पड़ता है। 2014 की ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट ही ने बताया कि खवातीन मजदूरों के साथ कितना जुल्म होता था। 20 घंटे काम, 4 घंटे सोने का वक्त और कोई हेल्पलाइन नहीं। 2017 में यूएई ने नया लेबर लॉ बनाया, लेकिन 2022 में द गार्डियन ने बताया कि अब भी पासपोर्ट जब्त किए जाते हैं। दुबई की तरक्की में मजदूरों का पसीना शामिल है, क्योंकि उसकी इकॉनमी बहुत हद तक फॉरेन लेबर पर डिपेंड है, जो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान दुबई के मजदूरों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन दुबई की गवर्नमेंट ने भी कई कदम उठाए। दुबई ने 1971 से कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम चला रखा है, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स का वीजा और स्पॉन्सरशिप एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स के पास होता है। इस सिस्टम के जरिए गवर्नमेंट फॉरेन लेबर्स को रेगुलेट करती है, मगर इस सिस्टम के नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी सामने आए, जैसे कि वर्कर्स के पासपोर्ट रोक लेना, उनके हकूक का ख्याल न रखना और उन्हें अब्यूसिव कंडीशन में काम करना पड़ता है। दुबई गवर्नमेंट ने मजदूरों के लिए कुछ लेबर रिफॉर्म लाए हैं, जैसे 2009 में वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसका मकसद मजदूरों की तनख्वाह वक्त पर मिलने को इंश्योर करना है। इस सिस्टम के जरिए एम्प्लॉयर्स जो तनख्वाह नहीं देते उन पर पनिशमेंट लगाई जाती है। 2012 में डोमेस्टिक वर्कर्स के हकूक के लिए लेजिस्लेशन अप्रूव हुई, जिसमें पेड वेकेशन और सिक लीव इंक्लूड है, मगर इन्फोर्समेंट अभी भी चैलेंज है। इलीगल और अनऑथराइज्ड वर्कर्स के लिए दुबई ने एमनेस्टी ग्रुप चलाया, जिसमें उन्हें अपना लीगल स्टेटस रेगुलेट करना या मुल्क छोड़ने का मौका दिया गया, ताकि बिना लीगल पेपर के लोग ज्यादा ना रहे। गवर्नमेंट ने इनलीगल हायरिंग और एक्सप्लॉयटेशंस को रोकने की कोशिश की। इस तरह दुबई की गवर्नमेंट ने मजदूरों के लिए कुछ कदम उठाए हैं, मगर मजदूरों के हकूक और उनकी बेहतरी के लिए अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मजदूरों के पसीने से ही दुबई ने तरक्की की है और गवर्नमेंट को भी उनकी प्रोटेक्शन और बेहतरी पर फोकस करना पड़ता है, ताकि मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन कम हो और वो भी अपनी मेहनत का पूरा फल हासिल कर सके। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर एक बड़ा और मशहूर फाइनेंशियल हब है, जहां दुनिया के बैंक्स, इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज और फाइनेंशियल सर्विसेज के ब्यूरोज मौजूद है। यहाँ बैंकर सूट्स पहनते हैं, यानी फॉर्मल बिजनेस ड्रेस में होते हैं, जो प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को दिखाता है। दुबई में लग्जरी होटल्स भी है, जैसे एटलांटिस, जो कि बहुत महंगे और शानदार होटल्स हैं,
जहाँ मेहमान लग्जरी स्टे का तजर्बा लेते हैं। ये होटल्स दुबई की तरक्की और अमीरी का एक सिंबल है। गोल्ड मार्केट्स, खास तौर पर दीरा में, दुबई की एक फेमस जगह है जहाँ लोग सोना खरीदने बेचने आते हैं। ये मार्केट पुरानी और मशहूर है और ये दुबई की ट्रेड और कॉमर्स का एक अहम हिस्सा है। इन तमाम चीज़ों से दुबई की मॉडर्न और तरक्की याफ्ता इकॉनमी का पता चलता है, जिसमें फाइनेंस, लग्जरी लाइफस्टाइल्स और ट्रेडिशनल मार्केट्स साथ साथ हैं। ये सब दुबई को ग्लोबल शहर बनाने की निशानियां हैं। साल 2020 में दुबई ने एक ऐसा मेला लगाया जिसे 2020 दुबई एक्सपो के नाम से जाना गया है। ये कोई मामूली मेला नहीं था, बल्कि दुनिया भर के मुल्कों का एक ऐसा मेला था जहां हर मुल्क अपने कल्चर, टेक्नोलॉजी और नई नई इनोवेशंस लेकर आया। हर कोना अपनी पेविलियंस में अपनी कहानी सुना रहा था। कोई अपनी पुरानी रवायतों का जिक्र कर रहा था और कोई अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से सबको हैरान कर रहा था। इस मेले का सबसे बड़ा जादू था रिन्यूएबल एनर्जी का, और इसका हीरो था मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ये था दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। सोचो, एक ऐसी जगह जो सूरज की रोशनी को पकड़कर उससे बिजली बनाती है, और वो भी इतनी के 2030 तक 5000 मेगावाट तक एनर्जी पैदा करेगी। इससे ना सिर्फ दुबई को रोशनी मिलेगी, बल्कि कार्बन इमिशन भी बहुत कम होगा, और ये शहर हवा को साफ रखने का वादा निभा रहा है। इसके अलावा दुबई अपने आप को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस और सस्टेनेबिलिटी के नए नए तरीके, ये सब दुबई के उस विजन का हिस्सा थे जिसमें वो चाहता था कि 2050 तक उसकी 75% एनर्जी साफ सोर्स से आए। ये कहानी थी एक ऐसे शहर की जो न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर, साफ और चमकता हुआ मुस्तकबिल दिखाना चाहता था। और ऐसा लगता है कि दुबई बोल रहा हो, देखो दुनिया, हम सिर्फ शहर नहीं बल्कि एक सपना है, एक सस्टेनेबल, स्मार्ट और रोशन सपना। 2026 के आसपास दुबई गवर्नमेंट और कंपनीज ने इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, और प्लान्स है कि ये अर्बन ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनेंगे, खास तौर पर ट्रैफिक और ट्रैवल टाइम कम करने के लिए। अक्सर ये एयर टैक्सीज इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड होती है और छोटे डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है, जैसे एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक। लेकिन अभी टेस्टिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल चल रहे हैं, इसलिए आमतौर पर इस वक्त एयर टैक्सी ऑफिशियली यूज में नहीं आई। तो अगले 1-2 सालों में शायद अब दुबई में एयर टैक्सीज का इस्तेमाल देखो, लेकिन फिलहाल वो फुली ऑपरेशनल नहीं हुई। इसके अलावा दुबई AI ड्राइवन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके शहर के तमाम सिस्टम जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, एनर्जी मैनेजमेंट और पब्लिक सर्विसेज को ज्यादा एफिशिएंट और स्मार्ट बनाया जाएगा। लेकिन हर चमकने वाला शहर हर तरफ से रोशन नहीं होता। दुबई की तरक्की ने दुनिया को हैरान कर दिया है, मगर इस रोशनी के पीछे कुछ साए भी हैं जो हर रोज की जिंदगी को मुतासर करते हैं। तेजी से बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल ने सफर को एक अजाब बना दिया है, जहां हर रोज लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। रियल एस्टेट की तेजी ने हाउसिंग और रेंट प्राइसेस को आसमान तक पहुंचा दिया है। एक ऐसा असर जहां एवरेज लोगों के लिए एक छत का सपना मुश्किल होता जा रहा है। और खास तौर पर दुबई में चीजें बहुत महंगी है। गर्मियों का शिद्दत भरा क्लाइमेट, जहां टेम्परेचर 45 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, इंसानी जिंदगी को सिर्फ एयर कंडीशनर कमरों तक महदूद कर देता है। दुबई की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गैर मुल्की लोगों पर मुश्तमिल है। इस वजह से कभी कभी कल्चर बैलेंस बिगड़ जाता है और लोकल एमिरेट्स की अपनी पहचान को चैलेंजेस का सामना होता है। रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा सप्लाई और मार्केट के ऊपर नीचे होना इन्वेस्टर के लिए टेंशन का सबब बना होता है। सबसे अहम बात यह है कि माइग्रेंट वर्कर्स, जो दुबई की इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद है, अक्सर मुश्किल जिंदगी, काम का प्रेशर और हेल्थ क्राइसिस का सामना करते हैं। ये सिचुएशन इंसानी और इखलाकी तौर पर सोचने पर मजबूर करती है। ये तमाम चैलेंजेस दुबई की ग्लोबल इमेज का एक दूसरा पहलू दिखाता है। जहां तरक्की है
वहाँ मसाइल भी है, लेकिन यह भी हकीकत है कि दुबई की गवर्नमेंट इन मसाइल को इग्नोर नहीं कर रही। नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बेहतर अर्बन प्लानिंग्स और सस्टेनेबिलिटी के जरिए हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर में दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जहाँ लोग अपने सपने पूरे करते हैं। फिर भी दुबई अपनी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इन मसाइल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल दुबई एक ऐसा शहर है जो लगातार चेंज हो रहा है। और आखिर में आप ये बताएं कि आपको दुबई शहर कैसा लगता है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।